between match fixing Watadev and Nagzar boys. Nagzar winning the toss, deciding to bowl first. Siddesh along with Sachit in the middle. Leaves it alone and starts off with the dot delivery. What a game we had just earlier, where it was 22 runs required in the first over, last over, and then it almost started well as far as the Parasim were concerned. That's up in the air. Fielder going back. Oh, what has he done? He has just completely misread that. Wanting to take it in one hand and opportunity gone begging. Similar kind of scenario during the first game today. And then Siddesh Mendgurkar blasted the opposition team with some quick fire runs. You drop catches, you pay the price. And certainly that price has been very costly over the years. In this tournament as well, we've seen it since morning. You drop a chance and then a big mammoth total have been raised by the following teams. Reverse sweep attempted, and that's a dot delivery. Left it alone. Gaurav Chandroji providing us with all the score updates. And also Vignesh Prabhu with the computer scoring. That is the digital scoring. Nicely played, straight to the man. A bit of fumble, and that will allow Sachit to get off the mark as well. So it was a tricky bit of start this by the Nagzar boys in the field. First a drop chance gone begging, now this misfield. You need to be very circumspect if you are trying to restrict the position under below score. Straight to the man on the bounce, good work. Again looking for a quick single, and will eventually make it, as there was no one backing up for that throw. In case if you have joined just now, then this is Kendir Boys Morshim Champs 2025, powered by Mandar Mohan Poke. Swing missed. Appealing, that was high. Dot delivery to end the over. After completion of one, it's 3. 3 without loss after one. Match fixing Watadev. Hello. I request the captain of Sheldon, please report to the commentary box. Hello. RF11 Sheldon captain, please report to the commentary box. Change in bowling from the opposite end. It will be Ramesh Anulekar in the bowling attack. Ramesh Anulekar, a very good left armer. Let's see if we can create some inroads in this batting of match fixing Watadev. Swing and dot delivery. Just trying to go aerial on the very first delivery, but couldn't quite. Dot delivery to start with. It's been scorching in the middle, as well as in the commentary box, as well as down in the VIP box. So please drink a lot of water. This time up and over. Fielder taken. And Ramesh Anulekar with that first breakthrough. It's 3 for 1. Match coming up next. R11 Sheldon to take on Shetty Group Koregaon.
Smashed it down the ground. Oh, just over. Valiant effort from that fielder. Millimeters away from him. Tried his best, but couldn't quite just pluck it out of thin air. That's 4. Gets off the mark with a boundary, does Sachin. Should be given 100 marks for that try that he did. Just a few inches taller, would have had it perfectly. Or maybe that timing of the jump would have made the difference. That's wide. Extras. That's nicely played down to cow corner, and will find just a single. This time in the vacant region. And that's running toward the fence for 4. Fast outfield. That's 4. "19 runs for the completion of second over. 19 for 1 after 2. Match fixing Vadadev. Shubham will continue. 19 for the loss of 1 after 2. Match fixing Vadadev. Smashed down the ground and will find just 1. Score moves to 20. Match coming up next, Arav Levin Chelde to take on Shettier Group Korgaon. Requesting both the captains, please come for toss. Shettier Group Korgaon and Arav Levin Chelde. Both the captains for the toss, please, as early as possible. Swing missed. Again, trying to go over the square leg region. This time a slower delivery. Mixing his pace up is Shubham. Not really allowing the batsman to settle on one particular pace that he's been bowling. This time wide, extras. And the review has been taken as well.
Arav Levin Chelde, if you can please report, the captain, Arav Levin Chelde, please report as early as possible. Don't know about the heartbeat, but certainly the militants from Pakistan will be hearing this kind of music now, as surgical strike could be in ploy in few days with that terror attack in Pahalgam yesterday. That's again left alone, and that's again a wide. 2 consecutive wides. Horrific scenes yesterday when a terror attacked. Again, a review has been taken. So the second review has been taken. Again, the third umpire will have a look if that's a wide or not. So it's a wide. So both the reviews have been lost. Short delivery, toe into the bat, but enough power to take it over the boundary ropes for a maximum. Again, big man, big mitts, big bats. And that's out of here. Score moves on to 28 with that maximum. And again, taking the bowlers to all parts is Sachit Sawant. Short delivery, again a wide, third wide of the over. Going for plenty. Just trying to bowl it away from the arc of the batsman. Trying to get away from the hitting zone. But has been missing. Thrice he has done it. And all 3 times has been declared wide. This time no proper timing. Down to deep square leg will just be 1. Score moves to 30 with that single. Match coming up next. Arav Levin Chelde to take on Shettier Group Koregaon.
Requesting both the captains, please come for toss as early as possible. And also, out of 11 Shalde captain, please report at the VIP box. Full toss delivery converted. Straight to the fielder, bit of awkward bounce to him. Is he going to come back for the second? Yes, he will. And will make it quite comfortably. 2 more runs added. Score moves to 32. Big matches will be coming. And nicely played. And that will just be one. Single to end the over after completion of 3. It's 33. Going at 11 runs per over after completion of 3. The match fixing, what are they? They've been put into bet by Nagzar. Boys Nagzar. Will be change in voice. It will be Ashok Naik sir in the commentary box at the start of the 4th over. That will be the pink over. लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सिक्सर 6 रन के लिए एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ 40 पर पहुंचा टोटल 1 विकेट पर। सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए सचिन सावंत और सचिन गोवेकर। अच्छा शॉट इस बार ऑफसाइड पर देखना होगा। 1 रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे, तब तक गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। 4 रन के लिए चली गई गेंद बाउंड्री पर। डीजे थैंक यू डीजे। 44 पर पहुंचा टोटल स्कोर। ये ओवर जो कि खिंडीर बॉय चैंप ओवर, जो चौथा ओवर पिंक कलर के गेंद
फिर से जोरदार शॉट इस बार, और एक बार फिर से गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन सीमारेखा से बाहर, हवाई फायर, सिक्सर। 6 रन के लिए 50 रन टोटल पूरे होते हुए इसी के साथ डीजे। मिड विकेट बाउंड्री की तरफ देखना होगा, फील्डर को बीट करते हुए गेंद चली गई, फिर से एक बार बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। आने वाला मैच हो रहा है अरब 11 शेल्डेम और शेट्टी ग्रुप कोरगांव, दोनों टीमों के बीच में अगला मैच जाने जा रहा है। शेट्टी ग्रुप कोरगांव और अरब 11 शेल्डेम, इन दो टीमों के बीच में 4 रन और मिले स्कोर में 54, लॉस ऑफ 1 विकेट, एक अच्छा टोटल बनाती हुई मैदान पर मैच फिक्सिंग वाटाडेव कारापुर क्रिकेट टीम। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सचित सावंत। ड्राइव किया इस बार, देखना होगा गेंद एक बार फिर से निकली कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 1 रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, लगभग बाउंड्री लाइन से भीतर गेंद को उठाते फील्ड करते, और जब तक थ्रो पहुंचता तब तक 2 रन के साथ 56 टोटल स्कोर। 56 पर पहुंचा, थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, 2 छक्के लगे, 1 चौका लगा इस ओवर में। 23 रन बने इस ओवर में। खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद प्रति ओवर 14 रन बनाती हुई मैच फिक्सिंग वाटाडेव कारापुर क्रिकेट टीम 56 रन, 1 विकेट पर, एकमात्र विकेट सिद्धेश मेंढकुरकर खुद के व्यक्तिगत 2 रन बनाकर सफलता मिली थी रमेश अनुर्लेकर को। और थोड़ी सी बातचीत चर्चा हो रही है आने वाले ओवर में गेंदबाजी में क्या किया जाए, और तब तक सुनते हैं हमारे संदीप डीजे को। ओवर लेकर रमेश अनुर्लेकर, जो अब तक के एकमात्र विकेट जो मिला है वो उन्हीं को मिला है, और वो अपने बॉलिंग बार पर, और सामने सचिन गोवेकर उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। 56 रन 1 विकेट पर 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। अच्छी गेंद इस बार एक और कर लेन के हल्के से कलाई को क्या मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर, और जब तक मिड विकेट से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 57 पर पहुंचा टोटल। सचित सावंत आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे, सचिन गोवेकर थोड़ा सा जो कि निश्चित रूप से 1 चौका 1 छक्का अब तक लगा चुके हैं, लेकिन सामने 3 चौके 3 छक्के अब तक सचित सावंत के बल्ले से, और वो स्ट्राइक पर सामना करते हुए रमेश अनुर्लेकर की गेंदबाजी का। फुल टॉस गेंद उड़ाया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए डीजे।
ऑन साइड पर स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर फील्डर 1 रन के लिए निकले। बहुत अच्छी फील्डिंग, तेजी के साथ गेंद को उठाया, एक अच्छा थ्रो सीधे गेंदबाज के हाथों में, लेकिन फिलहाल 1 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। मैच फिक्सिंग वाटाडे कारापुर क्रिकेट टीम जो पहले बल्लेबाजी करते हुए सामने नागजर बॉयज क्रिकेट टीम टॉस जीतकर गेंदबाजी करती हुई। ओवर पिच गेंद देखना होगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और बहुत अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच, अपने आप को जज किया, कैच को पकड़ा, विकेट चला गया। दूसरी कामयाबी मिलती हुई रमेश आनूर लेकर अपने स्पेल में दूसरा विकेट चटकाते हुए टीम का स्कोर टोटल स्कोर 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच में अतिरिक्त खिलाड़ी गोविंद दिखाई देते हुए मैदान पर पानी का बोतल लेकर, और तब तक नए बल्लेबाज जब तक मैदान पर पहुंचते, आइए जुड़ जाते एक बार फिर से संदीप डीजे के साथ। विकेट पर ड्राइव का इस बार अच्छा शॉट लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर कारपेट के साथ खेला। इस बार लतीफ ने एक सिंगल बनाया, 1 रन के साथ खेल समाप्त हुआ और 1 ओवर का यानी 5 ओवर समाप्त हुए और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 66 लॉस ऑफ 2 विकेट, 35 रन। शानदार बल्लेबाजी सचित सावंत की और उनका साथ देते हुए अब तक मैदान पर डटे हुए 2 छक्के 1 चौका लगाते हुए सचिन गोवेकर, लतीफ ने अपना आते आते एक सिंगल के साथ खाता खोला। आने वाला मैच एक बार फिर से हम कॉल कर रहे हैं आरव 11 शेल्डेम जो बड़ी दूर से इस मैदान पर आती हुई कैपे से, और उन्हीं के साथ मुकाबला शेट्टी ग्रुप कोरगांव क्रिकेट टीम जो अगला मैच होगा। दोनों टीम दोस्तों बिल्कुल आपकी टीम लिस्ट और टॉस बहुत जल्द से जल्द अगले मैच के लिए रेडी हो जाइए। इसी बीच में देखना होगा गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होता है मैदान पर नागजर बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से। धनेश आ चुके गेंदबाजी करने के लिए, 5 ओवर समाप्त हुए, 2 ओवर का खेल बाकी है। 12 गेंदों का बिल्कुल एक ठीक ठाक दिखाई देती हुई मैदान पर बल्लेबाजी के साथ मैच फिक्सिंग वाटाडेव कारापुर क्रिकेट टीम। धनेश अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने बैटर है एक पर खुद के व्यक्तिगत लतीफ उनके गेंदबाजी का सामना करते हुए। अल्टी पल्टी की कोशिश, शॉट थर्ड मैन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते। एक अच्छी शुरुआत धनेश की, लतीफ की कोशिश थी अल्टी पल्टी की, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। 22 पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर सचिन गोवेकर खुद के व्यक्तिगत 2 छक्के 1 चौका लगाते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर, स्ट्राइक पर लतीफ और बॉलिंग मार्ग पर धनेश। अच्छी गेंद, थोड़ा सा हवा में मार बैठे लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर से बहुत दूर गेंद, और जब तक पहले बाउंस पर गेंद को उठाते फील्ड करते, सिंगल के साथ 2 पर पहुंचे लतीफ। सामने अब स्ट्राइक पर आते हुए सचिन गोवेकर और धनेश जाते हुए धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्कोर 67 रन 67 लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बार देखना होगा, नहीं बिल्कुल विकेट कीपर के लिए मौका नहीं बना। एक मिस टाइम शॉट था, कवर पर खेलना चाहते, थोड़ा बाहरी किनारा लगा, लेकिन विकेट कीपर के लिए बिल्कुल मौका नहीं बना। अच्छी गेंदबाजी कर रहे धनेश। अब तक की अगर बात की जाए तो सिंगल पर रोक रहा है बल्लेबाज उनको स्लॉक ओवर जो, और लतीफ स्ट्राइक पर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए।
ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, आउट। बिल्कुल सामने पा गए स्टंपों के, मिड स्टंप पर ये गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे और साफ एलबीडब्ल्यू करार घोषित हुए, सफलता मिलती हुई तीसरा विकेट चला गया टीम का। लतीफ आउट होकर वापस खुद के व्यक्तिगत 2 पर और तीसरी सफलता मिलती हुई नागजर बॉयज क्रिकेट टीम को। डीजे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर के सर के ऊपर से गेंद, थोड़ा सा हवा में गोता लगाया था लेकिन मुश्किल सा मौका था और गेंद चली गई 6 रन के लिए। टोटल स्कोर 74 रन, 3 विकेट पर 74। छोटी गेंद शॉर्ट ऑन पोल मिड विकेट पर और एक बार फिर से एक बड़ा शॉट और एक बार गेंद चली गई 6 रन के लिए। डीजे के बाद टोटल स्कोर 80 रन, 3 विकेट पर। लास्ट ओवर टू गो। आने वाला मैच शेट्टी ग्रुप कोरगांव और आरव 11 शेल्डेम के बीच में अगला मैच होगा। अंतिम ओवर, लास्ट ओवर देखना होगा कौन आते हैं। गेंदबाजी के लिए नागजर बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से और गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए सितार आ चुके बॉलिंग बार पर। एक ठीक ठाक स्कोर बोर्ड पर स्कोर दिखाई देता हुआ अंतिम ओवर और देखना होगा कितने रन बना लेती है मैच फिक्सिंग वाटाडो कारापुर क्रिकेट टीम। लोअर फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट मिड अपर फील्डर, लेकिन जब तक गेंद को उठाते थोड़ा सा ओवर थ्रो हुआ, एक सिंगल, और जब तक खाली इलाका था विकेट के ऊपर जाते गेंद को फील्ड करते 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने और इन 2 रन के साथ टोटल स्कोर पहुंचा 82। लॉस ऑफ 3 विकेट, 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर और सितार गेंदबाजी करते हुए सामने सचिन गोवेकर और नॉन स्ट्राइकर उनका साथ देते हुए आते आते 2 गजब के छक्के लगाते हुए 12 पर खुद के व्यक्तिगत विराज जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर। ओवर पिच गेंद उड़ाया डीप लॉन्ग ऑन पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। एट 88 फुल टॉस ऑन साइड पर, लेकिन फील्डर है मौजूद। काउ कॉर्नर पर देखना होगा, एक सिंगल के लिए निकले और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा टोटल 89 रनों पर 89, लॉस ऑफ 3 विकेट। आखिरी ओवर का खेल जारी है, सितार गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने बैटर है विराज 12 पर खुद के व्यक्तिगत 2 छक्के और नॉन स्ट्राइकर इन पर सचिन गोवेकर अब तक 3 छक्के 1 चौका उनके बल्लेबाजी में। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप से छोड़कर विकेट कीपर के हाथों में थोड़ी सी मेरे ख्याल से
जो कि बल्लेबाज को पतलून को लगती हुई गेंद निकली थी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बड़ी देर के बाद एक डॉट गेंद निकलती हुई जो कि नागजर बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से। सितार अगली गेंद लेकर, छोटी गेंद हुक किया इस बार लॉन्ग लेग बाउंड्री पर और डीप लॉन्ग लेग सीमारेखा से बाहर। और एक बड़ा शॉट 6 रन के लिए। की कोशिश इस बार गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ, रन के लिए निकले नॉन स्ट्राइकर। इन पर रनआउट का मौका मिलेगा जी बिल्कुल। और चौथा विकेट चला गया टीम का, जो मैच फिक्सिंग वाटरडू कारापुर क्रिकेट टीम का। 7 ओवर का टोटल खेल समाप्त हुआ और 7वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 95 और टारगेट है सामने मैच को जीतने के लिए 96 रनों का। सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी रही सचिन सावंत के 35 रन बनाए और उनका अच्छा साथ दिया सचिन गोवेकर ने भी 3 छक्के अपने बल्लेबाजी में, एक चौका लगाया, एक नॉट आउट इनिंग जो सचिन गोवेकर की, और उन्होंने बनाए 33 रन। तो 2 बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और एक बड़ा टोटल 95 और टारगेट है 96 का। 96 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए।
निर्धारित 7 षटकं विजयासाठी 96 धावांची आवश्यकता. या स्पर्धेतील पहिला सामना आपण पाहिला, त्या सामन्यातही 95 धावा धावफलकावर झळकल्यानंतर प्रतिस्पर्धी संघाला 96 धावांचं आव्हान डोईजड ठरलं होतं. त्याची पुनरावृत्ती या महत्त्वपूर्ण सामन्यात होते की दुसऱ्यापासून 96 धावांचे सोपस्कार पूर्ण केले जात आहेत हे पाहायचं आहे. फलंदाजी करताना आक्रमक शैलीची फलंदाजी आपण सचिन गोवेकर याच्याकडनं पाहिली, सचिन सावंत यांच्याकडनं पाहिली. एका फलंदाजानं 35 धावा, त्यानंतर 33 धावा, डावाच्या सरते शेवटी विराज 3 षटकार टोलवतोय आणि हेच फलंदाज या ठिकाणी तब्बल 95 धावांपर्यंत मजल मारून देण्यास आपल्या संघाला सफलता प्राप्त करू देत आहेत. निर्धारित 7 षटकं 96 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी या ठिकाणी अचूक करावी लागेल, कारण सदरचे स्पर्धा ही बाद फेरीची अशी स्पर्धा, जो जिंकेल तो संघ पुढील फेरीत प्रवेश करेल. तर पराभूत संघाला आपला गाशा हा गुंडाळावा लागेल. त्यामुळे प्रत्येक सामना अति महत्त्वपूर्ण ठरेल, यात कोणतंही दुमत नाही. आणि त्याच अनुषंगातनं या ठिकाणी विजयाच्या कसोशीतनं या ठिकाणी नागझर संघाविरुद्ध भिडताना दिसतोय तो अर्थातच या ठिकाणी मॅच फिक्सिंग कारापूर क्रिकेट संघ. ज्या मॅच फिक्सिंग कारापूर क्रिकेट संघानं प्रथम सामन्यामध्ये एक दिमागदार विजय संपादन केला होता. अर्जुन आणि संकेत ही सलामीची बिनीची जोडी मैदानावर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सिद्धेश सज्ज होतोय आपली धुरा आजमावण्यासाठी, आपलं आक्रमण आजमावण्यासाठी आणि त्या आक्रमणाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण रचनेची पाहणी करत डावखुरा हाताचा फलंदाज अर्जुन हा सज्ज होतोय. पंचांच्या डाव्या हाताकडनं मारा करण्याच्या प्रयत्नात या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर सिद्धेश हा सज्ज. पहिला चेंडू आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑन पुल पद्धतीचा फटका टोलवायचा होता, मात्र चेंडू या ठिकाणी मार्गक्रमण करतोय फाईन लेग क्षेत्रात. पहिल्याच चेंडूवर या ठिकाणी चौकारानं आपलं खातं या ठिकाणी खोलतोय तो अर्थातच फलंदाज अर्जुन व चौकारानं या डावाची सुरुवात होते. 96 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत याचे काहीसे निर्देश दिले जात आहेत. पहिल्या चेंडूवरील एका सुरेख अशा चौकाराच्या जोरावर विचार मंथन करावं लागेल, क्षेत्ररक्षण रचना सजवावी लागेल, बदलावी लागेल आणि त्याच प्रयत्नातनं गोलंदाज सिद्धेश गोलंदाजी मार्कवर. आखूड टप्प्याचा चेंडू पुलचा फटका, चेंडूचा प्रवास हा मिड विकेटला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. सुरेख असं पूर्वानुमान क्षेत्ररक्षकाचं. झेल टिपण्याचा नाद सोडला जातोय, चेंडू अडविण्यात धन्यता मानली जाते. संभाव्य चौकार रोखला जातोय. केवळ एकेरी धावेवर समाधान हे मानावं लागतंय अर्जुनला व या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 5 धावा धावफलकावर. विजयी उद्दिष्ट 96 धावांचं निर्धारित 7 षटकांच्या सामन्यात. सिद्धेश सज्ज. आखूड टप्प्याचा चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडूचा प्रवास शॉर्ट मिड विकेटला. झेल उडतोय, झेल टिपला जातोय. क्षेत्ररक्षकांना या ठिकाणी चकविण्याचा प्रयत्न हा प्रयत्नच राहतोय व या अतिमहत्वपूर्ण सामन्यात संकेत स्वतःचा भोपळा न फोडता पहिल्या गड्याच्या स्वरूपात माघारी परततोय. सांघिक धावफलक 5 धावा धावफलकावर. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये नाट्यमय घटना मैदानावर घडते. फटका टोलवता क्षणी या ठिकाणी दुहेरी धाव घेण्याचा प्रयत्न व अखेर या ठिकाणी शुभमला सफलता ही प्राप्त होते.
2 धावांनी शुभम आल्या आल्या स्वतःचं खातं खोलतोय. एका कड्याच्या मोबदल्यात 7 धावा. विजयी उद्दिष्ट 96 धावांचं दोन्ही संघांसाठी अति महत्त्वपूर्ण असा हा सामना, कारण जिंकलेला संघ पुढील फेरीमध्ये दिमागदार प्रवेश करू शकेल, तर पराभूत संघाचं आव्हान या स्पर्धेतनं संपुष्टात येईल. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी सामना जिंकणं अति महत्त्वपूर्ण बाब आणि त्याच निर्धारानं त्याच कसोटीनं या ठिकाणी झटताना दिसत आहेत दोन्ही संघ. गोलंदाजी मार्कवर सिद्धेश सज्ज होतोय. सिद्धेशचा चेंडू रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न यशस्वी. चेंडू थर्ड मॅन सीमारेषा पलीकडे चौकारासाठी महत्वपूर्ण 4 धावा निघतायत. चौकारानं धावफलक बदलतोय तो अर्थातच या ठिकाणी 11 धावांवर. अकरा धावा धावफलकावर. एका गाड्याच्या मोबदल्यात परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर काहीसा महागडा ठरणारा गोलंदाज सज्ज होतो. यावेळी रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न. यावेळी मात्र असमर्थता प्राप्त होते क्षेत्ररक्षकाला चकविण्यासाठी. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. निर्धाव चेंडूसह पहिलं वैल षटक समाप्त. निर्धारित 7 षटकांचा सामना. 7 षटकांमध्ये तब्बल 96 धावांचं लक्ष विजयासाठी आणि या 96 धावांचा पाठलाग करताना सुरुवात चौकारानं झाली होती. त्यानंतर एकेरी धाव संकेत स्ट्राईकला येतोय. आल्या आला त्याचा झेल उडतोय. झेल टिपला जातोय. त्याची जागा घेण्यासाठी आलेला शुभम 3 चेंडूंवर 6 धावांचं योगदान देतोय. नाट्यमय काही घटना या पहिल्या वैल्या षटकात घडतायत व पहिल्या षटकाच्या सांगतेअखेरीस निर्धारित 7 षटकांच्या सामन्यात 11 धावा या धावफलकावर. गोलंदाजी मार्कवर निश्चितपणे बदल होईल. पाहिजे कोण गोलंदाज सज्ज होतोय तो. गोलंदाजी मार्कवर डावखुऱ्याचा रुद्रेश सज्ज होतोय अशी चिन्ह मैदानावरनं दिसत आहेत. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं सांघिक दुसरं षटक फेकण्यासाठी रुद्रेश आपल्या गोलंदाजी मार्कवर, तर रुद्रेशला सामोरा जाईल तो डावखुरा हाताचा फलंदाज अर्जुन परब, सलामीचा फलंदाज, तर त्याच्या साथीला शुभम रेडकर हा डावखुऱ्याचा आक्रमक शैलीचा. 11 धावा धावफलकावर. एक गडी बाद. परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज रुद्रेश हा सज्ज. पहिला चेंडू ओव्हरपिच पद्धतीचा दिलखुलासपणे टोलविला जातोय. चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑफ सीमारेषा पलीकडे षटकारासाठी एक मोठा फटका मारण्यासाठी योग्य चेंडूची निवड केली जाते. चेंडूला सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी टोलविलं जातंय व या 6 धावांनी धावफलक वधारतोय. धावफलक बदलतोय. तब्बल 17 धावा. 1 षटक 1 चेंडू यांच्या सांगतेअखेरीस. सतरा धावा धावफलकावर. दुसरं षटक हे पॉवर प्लेचं षटक. केवळ 2 खेळाडू सीमारेषेवर तैनात ठेवण्याची मुभा. लोअर फुल टॉस पद्धतीच्या चेंडूला सुरेखरित्या टोलविला जाते. ते एक्स्ट्रा कव्हरला एकदा फलंदाज पूर्ण करतायत. नेत्रदीपक क्षेत्ररक्षण होतंय. दुसऱ्या धावेचे इरादे होते ते अर्थातच या ठिकाणी अर्जुनचं. मात्र पाहिलं जातंय शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक डीप एक्स्ट्रा कव्हर पर्यंत जातोय. चित्त्याच्या चपळीतनं चेंडूवर ताबा मिळवतोय. तत्परतेनं फेक करण्याचा पवित्रा घेतोय. त्यामुळे दुहेरी धावांसाठी पुढे सरसावणारी पावलं ही रोखली जात आहेत. केवळ एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय. ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 18 धावांवर. ओव्हरपिच चेंडू फटका निघतोय डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं षटकारासाठी. षटकार चौकारांची आतषबाजी केली जाते. धावफलकावर 96 धावा जरी डोंगरा एवढ्या दिसत असल्या तरी त्या धावसंख्येचा आम्ही यशस्वी पाठलाग करू शकतो असे ठोस निर्देश या षटकातील मोठ्या फटक्यांद्वारे येत आहेत. 6 धावांनी धावफलक बदलतोय. धावफलक 24 धावा एका कड्याच्या मोबदल्यात. यानंतर होईल सामना तो शेट्ये ग्रुप कोरगाव वर्सेस आरव 11 शेल्डेम या 2 संघादरम्यान. तरी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना. आपल्या प्लेइंग 11ची लिस्ट आपण सादर करायची आहे. नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचं आहे. फोटो सेशनचे सोपस्कार आपण पूर्णत्वास न्यायचे आहे व सामना योग्य वेळी सुरू होण्यासाठी आम्हाला सहकार्य करायचं आहे. स्वीपचा फटका टोलवायचा होता. यावेळी मात्र चेंडूवर संपर्क करण्यासाठी पूर्णपणे असमर्थता प्राप्त होते. ती फलंदाज शुभमला. बाकीचे सोपस्कार पूर्ण केले जात आहेत क्षेत्ररक्षकाकर्मी. दुसरं षटक प्रगतीपथावर 24 धावा धावफलकावर. पहिल्या षटकात 11 धावा. आतापर्यंत 13 धावा निघतायत.
यावेळी लेग कटर पद्धतीचा चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर तो काहीसा बाहेर जातोय आणि या चेंडूवर मात्र आक्रमक फटका टोलविण्याचा प्रयत्न जीव घेण्या शुभमसाठी सिद्ध होतोय. यष्टीच्या मागे झिलचित शुभमला व्हावं लागतंय. दुसऱ्या खेळाच्या स्वरूपात वैयक्तिक 12 धावांवर 1 षटकार 1 चौकार यांच्या सहाय्यानं शुभमला सांघिक 24 या धावसंख्येवर माघारी परतावं लागतंय. 2 गडी बाद 24 धावा 96 धावांचा पाठलाग करताना. नवीन फलंदाज वैभव याची वर्णी मैदानावर लागते. 96 धावांचा पाठलाग करणार. 24 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर बदल होतोय की नाही ते पाहायचंय. शेवटचा चेंडू या षटकातील पुढे सरसावला जातोय. तो फलंदाज चेंडू टोलवतोय. तो लॉंग ऑनच्या दिशेनं जरी एक फलंदाज बाद झाला तर त्याचे विपरीत परिणाम होणार नाही. आपल्या कामगिरीवर याची दक्षता घेतली जाते. चौकारानं स्वतःचं खातं खोललं जातंय. खेळ समाप्त होतोय तो 2 षटकांचा. पण 2 षटकांच्या सांगतेखेरीज 96 धावांचा पाठलाग करताना 28 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. शुभम बाद होतोय 12 धावांवर. साथ मिळते अर्जुनची एका षटकाराच्या सहाय्यानं आणि त्यानंतर नवीन फलंदाज वैभव येतोय. आल्या आल्या 1 चौकार टोलवतोय व आपला इरादा हा साफ व्यतीत करताना तो दिसतोय. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. गोलंदाज सचित याची वर्णी लागते. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं व सांघिक 3रं षटक फेकण्यासाठी सचित गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. 28 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. समोर आहे फलंदाज तो अर्जुन सायकला. दोन्ही संघ पेडणे तालुक्याचं प्रतिनिधित्व करताना एक बहारदार खेळ या मैदानावर साकारताना दिसतंय. एक तो पेडणे तालुक्याचा तर एक बराच दूरवरून आलेला कारापूर क्रिकेट संघ. 32 धावा धावफलकावर. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी बदल होतोय. दूरवरच्या एंडकडनं या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. पहिला चेंडू लोअर फुल टॉस पद्धतीचा. केवळ या ठिकाणी मनगटी फटक्याने चेंडू वळविला जातो. चेंडूचा प्रवास होतोय तो मिड विकेटला. 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत व या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 29 धावांवर. एकोणतीस धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. दोन्ही संघांसाठी शेवटची सूचना. लास्ट कॉल फॉर द बोथ टीम्स. दोन्ही संघ आपल्या शेवटचा पुकार या ठिकाणी करण्यात येतोय. जर वेळेचं बंधन अनिवार्य आहे त्याची योग्य दखल आपण जर घेतली नाही तर षटकांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय हा पंचांचा राहील किंवा त्यापेक्षाही कठोर शिक्षा देण्याचा निर्णय हा पंचांचा राहील. याची नोंद आपण दोन्ही संघांनी घेऊन आम्हाला सहकार्य करायचं आहे. 29 धावा धावफलकावर सचित गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू फटक्या मागे ताकद कमी पडते. चेंडू लॉंग ऑफला साधा सोपा झेलात विरला होता. मात्र लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक एक साधा सोपा झेल सुटतोय व ज्या चेंडूवर मी बाद झालोय हे मनी बांधलं होतं फलंदाज वैभवनं. त्या वैभवची पावलं मात्र एकेरी धावेसाठी ही सहजासहजी वळतायत. एकेरी धावेने धावफलक वधारतोय तो 30 धावांवर. आजच्या दिवशी मात्र कमालीची अयशस्विता क्षेत्ररक्षकांना झेल टिपण्यासाठी आपण पाहतोय. मात्र यामागचं गूढ रहस्य काय हे केवळ या ठिकाणी खेळाडू सांगू शकतील. 30 धावा धावफलकावर. फटका मोठा सजवायचा होता मात्र डाव्या यशाच्या बाहेर जाणारा चेंडू. वाईडचा इशारा पंचांकडनं. आणखी एक अवांतर धाव. एकेरी अवांतर धावेच्या साहाय्यानं धावफलक बदलतोय तो 31 धावांवर. एकतीस धावा धावफलकावर. अर्जुनला मोठा फटका सजवायचा होता मात्र चेंडू हवेत न जाता जमिनीलगत सरसावत जातोय. तो डीप लॉंगॉनच्या दिशेनं जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतंय एकेरी धाव धावफलकात झळकली जाते. ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो निश्चितपणे अर्थातच या ठिकाणी 32 धावांवर.
तिसरं षटक प्रगतीपथावर 32 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात पाठलाग होतोय तो 96 धावांचा. कोरगाव संघ कर्णधार लास्ट कॉल आपल्यासाठी. जर आपण आमच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी लगेचच हजर झाला नाहीत तर एक षटक आपल्या डावातील कमी करण्यात येईल. कोरगाव क्रिकेट संघ आपण लक्ष द्यायचंय. वारंवार आपणास या ठिकाणी विनंती केली जाते, मात्र या विनंतीचा अवमान जर आपण करत असाल तर एका षटकाची कपात आपल्या डावामध्ये करण्याचा पूर्णतः अधिकार हा पंचांचा व आयोजन समितीचा राहील. एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 33 धावांवर. 33 धावा या धावफलकावर. परत एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. यावेळी मात्र चेंडू सपशेल चकवितोय तो क्षेत्ररक्षकाला. चेंडू स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार करतोय. जोपर्यंत मैदानावर मी उभा आहे विजयाचे प्रयत्न करेल असे स्पष्ट निर्देश येत आहेत. चौकारना धावफलक वाढतोय तो 37 धावांवर. खेळ समाप्त होतोय 3 षटकांच्या सागतेकरी 37 धावा 96 धावांचा पाठलाग करणं. आता 4 षटकांचा म्हणजे 24 चेंडूंचा खेळ बाकी. या 24 चेंडूंवर तब्बल 59 धावांची आवश्यकता. करने के लिए और सामने है स्ट्राइक पर बल्लेबाज है वैभव और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अर्जुन. वैभव और अर्जुन की ये जोड़ी मैदान पर और बॉलिंग बार पर रुद्रेश. 3 ओवर 37 टोटल स्कोर. चौथे ओवर की शुरुआत पावर प्ले का ओवर. इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट लॉन्ग अप बाउंड्री पर गेंद चली गई. बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए डीजे. फोर्टी 41 टोटल स्कोर आगे बढ़ा 41 रनों पर. चौड़ा इस बार जाने दिया लेग स्टंप से बाहर. गेंद वाइड बॉल का इशारा. एक अतिरिक्त सिंगल मिल गया स्कोर में. इस वाइड बॉल के साथ टोटल पहुंचा 42. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे रुद्रेश. 2 बैटर है मैदान पर अर्जुन और वैभव. एक अच्छा टोटल है. सामने अच्छा जवाब भी दे रहे हैं. इस बार थोड़ा सा अधूरा हिस्सा लगा. पॉइंट पर मौका बना. कैच को पकड़ा और एक विकेट चला गया टीम का. डीजे
बैटर मैदान पर 42 टोटल स्कोर और नए बल्लेबाज शुभम, अर्जुन का साथ देने के लिए शुभम। रुद्रेश की गेंद इस बार अच्छा शॉट, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कोई मौका नहीं, पावर प्ले में और एक बार गेंद चली गई, 4 रन के लिए मिले, 4 रन स्कोर के खाते में और इस चौके के साथ टोटल स्कोर पहुंचा 46। सामने दूर वाले चोर से लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए जोरदार बल्ला घुमाया था, इस बार एक डॉट गेंद, अच्छी गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। सचित सावंत जो टीम के विकेट कीपर बैटर, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, सचिन गोवेकर, सचित सावंत, ये 2 बल्लेबाजों की। और रुद्रेश की अगली गेंद, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। 50 रन टोटल पूरे होते हुए स्कोर पहुंचा टोटल 52 रनों पर। विकेट अगली गेंद लेकर इस बार ऑफसाइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, देखना होगा फील्डर गेंद के पीछे 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे, अच्छा थ्रो लेकिन अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, 2 बहुमूल्य रन पूरे किए। खेल समाप्त ओवर 1 होता हुआ ओवर का, यानी 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 54 रन। आने वाले 3 ओवर, 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 18 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 42 रन, 18 चेंडूत 42 धावा सामना जिंकण्यासाठी। आने वाले मैच का टॉस हो चुका है, शेट्टी ग्रुप कोरगांव क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का, गेंदबाजी का फैसला किया है और आरव 11 शेल्डेम क्रिकेट टीम जो पहले बल्लेबाजी करेगी। फिलहाल एक बार फिर से इस मैच की और जो कि रूबरू होते हैं, 18 गेंदों का खेल बाकी है, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और देखना होगा गेंदबाजी में कौन आते हैं बॉलिंग बार पर। 2 बैटर है, अर्जुन और शुभम, और बॉलिंग बार पर दिखाई देते हुए सचित सावंत जो गेंदबाजी करने के लिए 18 चेंडूत 42 धावा, 18 गेंदों में 42 रन। तीन ओवर बाकी, 18 गेंदों का खेल, 42 रन, 14 रन प्रति ओवर चाहिए, यानी 2 बड़े शॉट हर ओवर में लगाने पड़ेंगे। सामने स्ट्राइक पर अर्जुन और बॉलिंग मार पर सचित सावंत। फुल टॉस, अल्टी पल्टी वाला शॉट और देखना होगा थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, फील्डर है गेंद पीछे और लगभग गेंद चली गई, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर और 4 रन मिल गए स्कोर के खाते में। 38 रन अभी भी चाहिए, 17 गेंदों का खेल, एक बड़ा टोटल, लेकिन सामने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भी कर रही है नागजर बॉयज क्रिकेट टीम और देखना होगा फिलहाल इस ओवर में आने वाली गेंद पर सचित थोड़ा अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर है अर्जुन, उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। एक लोअर फुल टॉस, अपने आप पर नाराज हो गए, मालूम था ये मौका था चौके का, लेकिन बल्ले का भीतरी किनारा, टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर सचिन गोवेकर गेंद को कलेक्ट करते, एक डॉट गेंद के साथ सचित सावंत अपने बॉलिंग मार्ग पर। 16 गेंदों का खेल अभी भी मैच का बाकी और जीत के लिए चाहिए 38 रन। लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल के एक साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। 37 रन मुकाबले से दूर है नागजर बॉयज क्रिकेट टीम, बहुत अच्छा क्रिकेट दोनों टीमों के बीच में। 2 टीम जो कि शुरू में ध्रुव पारसे और उन्हीं के साथ खिंडीर बॉयज मोरजी, 2 टीम इस आज के दिन में इस टूर्नामेंट से वापस।
अल्टी पल्टी की कोशिश, धीमा फेंका गेंद, इस बार अपने फॉलो थ्रू में निकले, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन और मिला, गति में परिवर्तन किया था इस बार सचिन सावंत ने, थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद और अल्टी पल्टी की कोशिश रही थी अर्जुन की, लेकिन उतना अच्छा शॉट नहीं मिला। और अब शुभम स्ट्राइकर और शुभम के लिए ओवर द विकेट सचिन अपने बॉलिंग मार्ग पर। 5वां ओवर, आने वाले 2 ओवर का खेल मैच का अभी भी बाकी। अच्छा शॉट, सामने अपने फॉलो थ्रू में गेंद थोड़ी से हाथों से टकराती हुई दूर हो गई। एक बहुत अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, लेकिन एक सिंगल रहने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। एक अच्छी गेंदबाजी हो रही है, पिछले 2-3 गेंदों पर लगातार थोड़ा सा बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। और सामने एक बार अर्जुन स्ट्राइक पर सचिन की गेंदबाजी का सामना करते हुए। हवा का झोंका है दोपहर के सत्र में। आगे निकलकर एक बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर सीधे हाथों में गेंद निकली और एक विकेट चला गया नागजर बॉयज क्रिकेट टीम का। डीजे और सचिन एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को अगली गेंद लेकर। रेटम ओवर द विकेट। 5वां ओवर अभी भी जारी है। आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, एक सिंगल बनेगा। दिनेश ने अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो खेला और एक ओवर का समाप्त हुआ। और इस ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर जो कि टोटल स्कोर 72। आने वाले 2 ओवर 12 62, 2 ओवर बाकी और अभी भी चाहिए जीतने के लिए। 12 डिलीवरीज 34 रन, 12 चेंडू 34 धावा। अंपायर का इशारा रिव्यू ले चुके हैं अंपायर। रनआउट के लिए ये इशारा हो चुका है अंपायर की और हमारे तीसरे अंपायर योगेश्वर पर मुन्ना दाभोलकर जो हमारे टीवी स्क्रीन के साथ जुड़ चुके हैं, देखा जाएगा। ये अपील तो जरूर हुआ रनआउट के लिए। और आने वाले मैच का भी टॉस हो चुका है। शेट्टी ग्रुप कोरगांव क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला और बल्लेबाजी को मौका दिया है आरव 11 शेल्डेम क्रिकेट टीम को। देखा जा रहा है मैदान पर क्या हुआ।
नॉट आउट। तो तीसरे अंपायर का कॉल आ चुका है नॉट आउट। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, एक सिंगल बढ़ गया जरूर स्कोर के खाते में। और देखा जाएगा फिर से जो कि आने वाली गेंद पर अब मात्र थोड़ी सी आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बड़ा शॉट लगाने पड़ेगा इस ओवर में। थोड़ा सा रन रेट बढ़ चुका है स्कोर बोर्ड पर नागजर बॉयज क्रिकेट टीम के लिए। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच, बड़ श्लोंगन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे धन्यवाद। का खेल 27 रन, 10 डिलिव्हरी 27 रन, 10 चेंडूत 27 धावा, 10 गेंदों में 27 रन। अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद, एक सिंगल, एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक रन और मिल गया स्कोर के खाते में। 9 गेंदों का खेल बाकी है, 26 रन चाहिए। आने वाले 3 गेंदों का खेल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आने वाले 3 गेंदों में कम से कम एक दूसरा और शॉट लगाना ही पड़ेगा नागजर बॉयज क्रिकेट टीम को। 9 गेंदों में 26 रन, 9 डिलीवरी 26 रन। पुलर लेन की गेंद पैरों पे आके टकराई, हल्का सा अपील, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। 1 रन मिला स्कोर के खाते में और थोड़ी सी जो कि दूरी कम हो गई, लेग बाइज का इशारा अंपायर का। एक सिंगल मिलता हुआ स्कोर में। देखना होगा ये ओवर कहां पर समाप्त होता है, आखिरी ओवर में कितने रन बनाने पड़ेंगे नागजर बॉयज क्रिकेट टीम के लिए, ये फिलहाल देखा जाएगा मैदान पर। इस बार थोड़ा सा ऑन द राइट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑफ पर फील्डर पहले रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। और जब तक गेंदबाज थ्रो को कलेक्ट करते, 2 बहुमूल्य रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। खेल जारी है छठे ओवर का। इस ओवर के बाद आखिरी ओवर का खेल बाकी है और टोटल स्कोर पहुंचा है 73 रन, 73 टोटल स्कोर, 23 मोर, 23 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। यह गेंद काफी निर्णायक है, कम से कम एक बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा, मैच में वापसी होगी नागजर बॉयज क्रिकेट टीम की। ओ ये गेंद मौका था जरूर, फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं मिला। क्या सिंगल के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, मिड विकेट बाउंड्री से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, मिले 2 रन, 22 का इशारा अंपायर का, 2 बहुमूल्य रन। लेकिन एक मौका जरूर था बड़े शॉट के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में, 75 टोटल स्कोर। आखिरी ओवर, 6 गेंदे और 6 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए अभी भी 21, लास्ट ओवर 21, 6 चेंडूत 21 धावा, 6 गेंदे और 21 रन मैच को जीतने के लिए। बॉलिंग मार्क पर विराट, 6 गेंदे और 21 रन, लास्ट ओवर 21 रन, 6 चेंडूत 21 धावा। बहुत शानदार मुकाबला नागजर बॉयज और मैच फिक्सिंग वाटरडेव कारापुर क्रिकेट टीम के बीच में। आने वाले मैच के लिए दोनों टीम दोस्तों रेडी हो जाइए, क्योंकि थोड़ा समय कम है, 4 मैच अभी भी बाकी है आज के।
विराज बॉलिंग मार्ग पर आखिरी ओवर, लास्ट ओवर। इस बार गेंद निकली विकेट कीपर के पीछे और इसी के साथ पहली गेंद पर मिलती हुई सफलता विराज को। 5 गेंदे और 21 रन, 5 डिलीवरी 21 रन। डीजे थैंक यू डीजे, धन्यवाद। पहली गेंद पर विकेट, विराज को मिली सफलता। 5 गेंदों का खेल बाकी, 21 रन मैच को जीतने के लिए। और न्यू बैटर मैदान पर श्रीकांत, जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, फॉलो थ्रू में फील्डिंग, रनआउट का मौका और एक विकेट मिला चला गया। तो अब मैच आ चुका है 4 गेंदों में 21 रन, 4 चेंडूत 21 धावा। डीजे मैच में 4 गेंदों में 21 रन, आने वाली गेंद पर शॉट लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुकाबला बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैच फिक्सिंग वाटाडेव कारापुर क्रिकेट टीम के लिए। इस बार टॉप एज लगा, गेंद निकले फाइन लेग पर और इस ओवर में ये दूसरा कैच पकड़ते हुए अब लगभग मुकाबला फंस चुका है। 3 गेंदे और 21 रन। डीजे शाम को खेलेगा इस मैदान पर, लेकिन उससे पहले देखा जाएगा क्या होता है आने वाली गेंदों पर। अगर नो बॉल, मैच में वापसी होगी। स्लोवर वन, इस बार बिल्कुल होशियारी के साथ गेंदबाजी करते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं की, बिल्कुल लाइन पर एक स्लो डिलीवरी, डॉट गेंद और मुकाबले को पक्का करते हुए मैच फिक्सिंग वाटाडेव कारापुर क्रिकेट टीम। छोटी गेंद, इस बार हुक्का गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लेकिन देरी हो चुकी है, गेंद चली गई सी मार्का से बाहर। 6 रन के लिए अब चाहिए 15 रन और खेल बाकी है सिर्फ लास्ट बॉल, आखिरी गेंद। फुल टॉस और मिड विकेट पर मौका कैच का। तो इसके साथ ये मैच समाप्त होता हुआ, मैच को जीतती हुई मैच फिक्सिंग वाटाडेव कारापुर क्रिकेट टीम। और उन्हीं के साथ बहुत बहुत थैंक यू नागजर बॉयज, आपने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, खिंडीर बॉयज मोरजिम चैंप्स में। आने वाले टूर्नामेंट के लिए आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए फील्डिंग के लिए प्लीज जल्द से जल्द आरव 11 शेट्टी ग्रुप कोरगांव क्रिकेट टीम टॉस जीतकर फील्डिंग, आरव 11 शेल्डेम आपकी ओपनिंग जोड़ी।